وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، محرم شریف کا مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ اہل بیت اطہار بالخصوص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کے دن ہے۔ الحمدللہ ہم حسینی ہے، ذکر حسین کرتے بھی ہے اور ذکر حسین سنتے بھی۔ تو آج ہم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آغاز گفتگو سے قبل حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا، اے محبوب ان سے فرما دو کہ آؤ ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے بلائے تم اپنے بیٹے بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اور اپنی عورتیں لائے تم اپنی عورتیں لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم خود بھی آئے اور تم بھی آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر مباہلہ کریں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالے۔ صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نجران کے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بھٹکے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، مگر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ کتنا ناپاک عقیدہ ہے، کتنا ناپاک اور گندا عقیدہ ہے۔ تو نجران کے عیسائی حضور کے پاس آئے اور اسی پر بحث، پیارے آقا نے ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ تو اللہ کی قدرت کا اعجاز ہے، یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، مگر جب وہ نہیں مانے تو پیارے آقا نے اللہ کے حکم سے مباہلے کی دعوت دی کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنا بیٹا لے آتا ہوں، تم اپنی عورتیں لے آؤ، میں اپنی عورتیں لے آتا ہوں، ہم خود بھی آتے ہیں تم خود بھی آؤ، پھر مباہلہ کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے یہ چیلنج قبول کر لیا، اگلا دن طے پایا۔ اب انہوں نے اپنے سب سے بڑے پادری سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ظالموں، تمہیں پتا ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہے، یہی وہ رسول ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، لہٰذا ان سے مباہلہ مت کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا، امام حسن کو اپنی انگلی تھما دی، فاطمہ الزہرا کو اپنی چادر میں لیا،
मौला अली को उनके पीछे खड़ा कर दिया। अब ये पंचतन पाक का काफिला चल पड़ा, मैदान में पहुंचे। प्यारे आका ने फरमाया बेटा हसन बेटा हुसैन, अर्ज की जी नाना जान। फरमाया अभी मैं दुआ करूंगा, तुमने आमीन कहना है। अल्लाह अकबर। याद रखो हुजूर की दुआ को किसी की आमीन की जरूरत नहीं है। ये शान हसन बताना था, ये शान हुसैन बताना था, वरना हुजूर की दुआओं का आलम तो ये है कि वो दुआ जिसका जो बन बहारे कबूल, उस नसीबे इजाबत पे लाखों सलाम। इजाबत का सहरा इनायत का जोरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ये तो इमाम हसन के सर पे ताज सजाना था कि दुआ मुस्तफा की है, आमीन हसन कह रहा है। दुआ मुस्तफा की है, हुसैन आमीन कह रहा है। खैर जब ईसाइयों के उस पादरी ने दूर से देखा कि एक चांद सीने से लगा रखा है, एक चांद उंगली में थमा रखा है, हसनैन करीमैन के नूरानी रोशन चेहरे देखे, मौला अली का पूर जलाल चेहरा देखा, तो उसने अपनी कौम से कहा कि ऐ लोगों, इनसे मुकाबला मत करना, मुबाहला मत करना। खुदा की कसम मोहम्मद की गोद में मैंने ऐसे चेहरे देखे हैं कि अगर वो अल्लाह से दुआ करते पहाड़ को हटाने की, तो अल्लाह ताला पहाड़ को हटा देगा। चुनांचे उन्होंने आकर माफी मांगी और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अगर ये जालिम मुबाहला करते उनकी शक्लें सुपर और बंदरों जैसी हो जाती, नजरान के चारों तरफ का जंगल आग से भड़क उठता, और एक साल के अंदर अंदर जहां जहां ईसाई थे वो सब के सब हलाक हो जाते। मोहतरम हजरात, ये शान है अहले बैत अतहार की, मैदान में अहले बैत अतहार तौहीद को बचाने निकले हैं, तौहीद को मनवाने के लिए प्यारे मुस्तफा निकले हैं, तौहीद को मनवाने के लिए मौला अली निकले हैं, तौहीद को मनवाने के लिए हसनैन करीमैन है। तो आयत तत्हीर के वारिस ये हजरत हसनैन करीमैन है, पंचतन पाक है। मोहतरम हजरत, ये शान है हसनैन करीमैन। औलाद की चाहत में माँ बाप सब कुछ कुर्बान कर देते, रातों की नींद कुर्बान कर देते, अपना चैन और करार कुर्बान कर देते। ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते, ना खिजा देखते हैं, ना बहार देखते हैं, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। मगर मोहब्बत का एक अंदाज आपको दिखाऊं, हजरत इज्जी वकार हुसैन वो शख्सियत है, हुसैन वो हस्ती है जिन पर प्यारे मुस्तफा ने अपनी सगी औलाद को कुर्बान कर दिया। रिवायत में है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, गोदे रसूल में एक तरफ हजरत इब्राहिम प्यारे आका के सगे बेटे हैं, दूसरी तरफ इमाम हुसैन जलवागर है, एक तरफ प्यारे आका का शहजादा है, दूसरी तरफ मेरे आका का नवासा है। इतने में जिब्रील अमीन आ गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला इन दोनों शहजादों को एक साथ आपके पास नहीं रखेगा, उनमें से एक को अपने पास बुला लेगा। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो अपने बेटे को दे दे, चाहे तो अपने नवासे को दे दे। हुजूर ने इरशाद फरमाया मैं इब्राहिम को दे सकता हूँ मगर हुसैन को नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर। इस वाक़ये के चंद दिनों के बाद हजरत इब्राहिम का विसाल हो गया। फिर जब भी इमाम हुसैन प्यारे आका की बारगाह में हाजिर होते, सरकार फरमाते हुसैन मेरा वो बेटा है जिस पर मैंने अपने सगे बेटे को कुर्बान कर दिया। मोहतरम हजरात, मोहब्बत का अंदाज देखिए, प्यारे मुस्तफा ने हुसैन पर अपना सगा बेटा कुर्बान कर दिया और करबला में इमाम हुसैन ने नाना जान के दीन पर अपने सारे बेटे कुर्बान कर दिए। हुजूर को इमाम हुसैन की चाहत का कितना ख्याल, हुजूर मेरे आका इमाम हुसैन की चाहत का कितना ख्याल रखते हैं। हुजूर दाता अली हज़वेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कश्फुल महजूब में लिखते हैं कि ईद का दिन है, इमाम हुसैन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज किया नाना जान आज ईद का है, ईद का दिन है, मदीने की गलियों में बच्चे खेल रहे हैं और सबके पास अपनी अपनी सवारी है, लेकिन मेरे पास सवारी नहीं है।
تو پیارے آقا جن کے لیے معراج کی رات براق سواری بنا تھا، وہ محبوب آقا پیارے حسین کے لیے اپنے گھٹنے اور اپنے ہاتھوں کو رکھ کر سواری کی شکل اختیار فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا حسین سواری نہیں ہے تو کیا ہوا، میں مصطفیٰ تیری سواری، میری پشت پر سوار ہو جا۔ امام علی مقام پشت نبی پر سوار ہو گئے۔ عرض کیا نانا جان ان سواریوں کی تو لگامیں بھی ہے مگر میری لگام نہیں ہے، میری سواری کی لگام نہیں ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ بیٹا حسین یہ واللیل کی زلفیں کس لیے ہے؟ داتا علی حضوری لکھتے ہیں کہ سرخ رنگ کا دھاگا پڑا ہوا تھا، نبی پاک نے اسے اٹھایا اپنے منہ میں رکھا، دونوں کنارے امام حسین کو پکڑا دیے۔ اب امام حسین جدھر کھینچتے ہیں پیارے مصطفیٰ ادھر مور جاتے ہیں، دائیں کھینچتے ہیں دائیں گھوم جاتے ہیں، بائیں کھینچتے ہیں بائیں گھوم جاتے ہیں۔ داتا علی حضوری فرماتے ہیں ساری کائنات مصطفیٰ کی مرضی چاہتی ہے اور مصطفیٰ حسین کی مرضی چاہتے ہیں، ساری کائنات مصطفیٰ کی مرضی سے چلتی ہے، آج مصطفیٰ حسین کی مرضی سے چلتے ہیں۔ تو امام حسین پشت نبی پر ہے، نبی پاک کی پیٹھ پر ہے، اور ایک دن کا معمول نہیں ہے، یہ روزمرہ کا معمول ہے۔ امام حسین آتے ہیں، کبھی نانا جان کی گود میں کھیلتے ہیں، کبھی نانا جان کے سینے سے کھیلتے ہیں، کبھی نانا جان کی زلفوں سے کھیلتے ہیں، کبھی نانا جان کی پشت پر کھیلتے ہیں، حتیٰ کہ پیارے آقا نماز میں ہوتے ہیں، حسنین کریمین آتے ہیں، پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، تو پیارے مصطفیٰ سجدہ طویل کر دیتے ہیں، سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ حضرات عزیز وقار ذرا غور فرمائیے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ امام حسین کی عظمت کو دیکھنا ہو پیارے مصطفیٰ کو دیکھو، جنہوں نے آپ کے لیے سجدہ لمبا کر دیا، وہ سجدے کی عظمت سمجھنی ہو تو امام حسین کو دیکھو جنہوں نے سجدے میں سر کٹوا دیا۔ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، کیسی پڑھتے ہیں؟ اکثر تو پڑھتے نہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ ہم کیسی پڑھتے ہیں؟ آئے نماز ختم ہوئی گھر لوٹ گئے، عصر میں آئے گھر لوٹ گئے، ظہر پر ہی گھر لوٹ گئے، عشاء پر ہی گھر چلے گئے، لیکن رب چاہتا تھا کائنات میں کوئی ایسا نمازی ہو کہ نماز کے لیے آئے تو پھر کبھی واپس نہ جائے، سجدہ کرے تو کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ ایسی نماز میرے حسین نے پڑھی ہے، ایسا سجدہ میرے حسین نے کیا ہے۔ محترم حضرات، اے امام علی مقام، آپ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ابھی گود رسول میں تھے، ابھی آپ پر نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اس وقت پیارے آقا نے آپ کو جنت کی سرداری عطا فرما دی، فرمایا کہ حسین اور حسن جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ اے امام علی مقام، اگر آپ سجدہ نہ کرتے آپ کی سرداری میں کوئی فرق نہیں آتا، آپ کی سرداری قائم تھی، اس کے باوجود آپ نے اتنے زخم کھا کے سجدہ کیوں کیا؟ امام علی مقام پیغام دیتے ہیں اے نانا جان کی امتیوں سن لو، میں جانتا ہوں کہ میں جنتی جوانوں کا سردار ہے، اس کے باوجود اتنے زخم کھا کر سجدہ کر کے تمہیں سبق دے رہا ہوں۔ بلا شبہ جنت کی سرداری بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے، مگر جنت کی سرداری میں وہ لطف نہیں ہے، وہ مزہ نہیں ہے جو سجدہ کرنے میں ہے، جو نماز پڑھنے میں۔ محترم حضرات اندازہ لگائیے حضور علیہ السلام کو اپنے شہزادوں کی چاہت کا کتنا خیال ہے۔ عظیم محدث امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ معجم کبیر میں ذکر کرتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس عظیم ماہر قرآن بھی ہے، سید المفسرین بھی ہے، مفسر قرآن بھی ہے، صحابی رسول بھی ہے، پیارے مصطفیٰ کے چچا زاد بھائی بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ عصر کی نماز کا وقت، غور سے سنیے گا، بڑی پیاری حدیث ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عصر کی نماز کا وقت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اقامت یعنی تکبیر کہی گئی، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانا شروع کیا، 3 رکعتیں پڑھ چکے تھے، 4تھی رکعت میں پہنچے تو امام حسن اور امام حسین تشریف لے آئے۔ دونوں شہزادے اس وقت ننھی عمر میں تھے،
दोनों शहजादों का बचपन है। अब नाना जान और नवासों का प्यार देखे। दोनों नवासे प्यारे आका की पुश्त पर सवार हो, पीठ पर सवार हो गए। रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बे मामूल नमाज पढ़ते रहे। आखिर चौथी रकात मुकम्मल हुई, आपने सलाम फेरा, दोनों शहजादों को सामने बिठाया, फिर इमाम हसन को दाएं कंधे पर और इमाम हुसैन को बाएं कंधे पर बिठाया। हदीस पाक इससे आगे भी है कि इसके बाद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों के फजाइल बयान फरमा। मगर इससे आगे हदीस पाक सुनने से पहले जरा तसव्वुर कीजिए कितना खूबसूरत और हसीन और जमील मंजर होगा। जगह कौन सी है? दुनिया की दूसरी अफजल तरीन मस्जिद मस्जिद नबवी शरीफ है। वक्त कौन सा है? वक्त असर है। सामने कौन बैठे हैं? उम्मत के अफजल तरीन लोग यानी सहाबाए किराम मौजूद है। कलाम फरमाने वाले कौन है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब ये कितनी खूबसूरत हसीन और जमील फजीलत वाली, कितनी आला, कितनी निराली ये महफिल सजी हुई है। और इस अजीम शान महफिल का उन्वान क्या है? इस महफिल का टॉपिक क्या है? इस महफिल का मौजू क्या है? तो इस महफिल का उन्वान है फज़ाइल हसनैन करीमैन, अज़मत हसनैन करीमैन, शान हसनैन करीमैन, मकाम हसनैन करीमैन। अब आगे हदीस पाक सुनिए। प्यारे आका ने दोनों शहजादों को अभी तक कंधों पर उठाया हुआ है। इसी हालत में सहाबा किराम से मुखातिब हुए, फरमाया ऐ लोगो अल्लाह उखबिरकुम बिखैरिन नास जद्दा व जद्दा, ऐ लोगो क्या मैं तुम्हें उनके बारे में ना बताऊं जिनके नाना और नानी तमाम लोगों के नाना और नानी से बेहतर है। अल्लाह उखबिरकुम बिखैरिन नास अम्मा व अम्मा, ऐ लोगो क्या मैं तुम्हें उनके बारे में ना बताऊं जिनके चचा और फूफी तमाम लोगों के चचा और फूफी से बेहतर है। अल्लाह उखबिरकुम बिखैरिन नास खाला व खाला, ऐ लोगो क्या मैं तुम्हें उनके बारे में ना बताऊं जिनके मामू और खालाए तमाम लोगों के मामू और खालाओं से बेहतर है। अल्लाह उखबिरकुम बिखैरिन नास अब्बा व उम्मा, ऐ लोगो मैं क्या तुम्हें उनके बारे में ना बताऊं जिनके वालिद और वालिदा निहायत अफजल तरीन लोग। अब देखिए प्यारे मुस्तफा लगातार सवालात करते रहे, सवाल पूछते रहे कि दुनिया में सबसे अफजल तरीन नाना कौन है, अफजल तरीन चचा कौन है, अफजल तरीन फूफी कौन है। प्यारे आका खुद सवाल पे सवाल करते रहे, फिर खुद ही जवाब देना शुरू किया। फरमाया हुमल हसन वल हुसैन, ऐ लोगों सुन लो जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो कोई और नहीं है, ये मेरे दोनों शहजादे हसन और हुसैन है। वो इस वक्त मेरे कंधों पर सवार है और तुम उनकी ज़ियारत कर रहे हो। फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बयान आगे बढ़ाते हुए फरमाया जद्दहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों सुन लो उनके नाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जद्दहुमा खदीजतुल कुबरा, उनकी नानी खदीजतुल कुबरा है। उम्मुहुमा फातिमातुज़ ज़हरा, उनकी वालिदा फातिमातुज़ ज़हरा है। अबूहुमा अलीयुल मुर्तज़ा, उनके वालिद अली मुर्तज़ा है। अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब, उनके चचा जाफर तैयार है। अम्मतुहुमा उम्मे हानी, उनकी फूफी उम्मे हानी है। खालुहुमा अल कासिम इब्न रसूलिल्लाह, उनके मामू रसूलुल्लाह के बेटे हजरत कासिम है। खालातुहुमा ज़ैनब रुक़ैया व उम्मे कुलसुम बिनातो रसूलिल्लाह, अरे उनकी खालाए हजरत ज़ैनब हजरत रुक़ैया हजरत उम्मे कुलसुम रसूलुल्लाह की शहजादियां। कहिए सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात आप देखिए गुफ्तगू का अंदाज देखिए प्यारे मुस्तफा का। एक एक रिश्ता कितना हसीन है, एक एक रिश्ता कितना पाकीज़ा है। पहले प्यारे मुस्तफा ने खुद सवाल किया और फरमाया कि बताओ दुनिया में
मैं तुम्हें ना बताऊं कि सबसे अफजल तरीन जिनके नाना है, सबसे अफजल जिनके वालिदैन है, सबसे अफजल जिनकी खाला है, सबसे अफजल जिनके मामू और चचा है। ये सारे सवालात करने के बाद फिर खुद सरकार ने उसका जवाब भी दिया और वो रिश्ते भी गिनवाए, वो रिश्ते भी बताए कि उनके नाना कौन है, अल्लाह के रसूल है, नानी कौन है, खदीजतुल कुबरा है, सबसे अफजल उनके चचा कौन है, जाफर तैयार है, मामू कौन है, प्यारे आका के बेटे हजरत इब्राहिम है, खालाए कौन है, ज़ैनब रुकैया, हजरत उम्मे कुलसुम रसूलुल्लाह की शहजादिया है। प्यारे आका ने अपने सिलसिले कलाम को आगे बढ़ाते हुए मजीद फरमाया कि सुनो, जद्दहुमा फिल जन्ना, अरे उनके नाना भी जन्नती है, जद्दहुमा फिल जन्ना, उनकी नानी भी जन्नती है, अबूहुमा फिल जन्ना, उनके वालिद भी जन्नती है, उम्मुहुमा फिल जन्ना, उनकी वालिदा भी जन्नती है, खालोहुमा फिल जन्ना, उनके मामू भी जन्नती है, खाला तो हुमा फिल जन्ना, उनकी खालाएं भी जन्नती है, हुमा फिल जन्ना, ऐ लोगों ये दोनों भी जन्नती है, वमन अहब्बहुमा फिल जन्ना, और जो खुश नसीब इनसे मोहब्बत करे वो भी जन्नती है। मोहतरम हजरात, जरा गौर फरमाइए, प्यारे मुस्तफा ने कितनी हसीन अंदाज में, कितने प्यारे अंदाज में अपने शहजादों के फजाइल बयान किए। फरमाया कि ये खुद भी जन्नती है और जो उनसे मोहब्बत करे वो खुशनसीब भी जन्नती है। मोहतरम हजरात, कितनी प्यारी हदीस है, कितनी ईमान अफरोज हदीस है, लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है, वो ये है कि इमाम आली मकाम इमाम हसन और इमाम हुसैन बड़े होकर बड़े आलिम भी बनने वाले थे, बड़े मुहद्दिस भी बनने वाले थे, बड़े आबिद व ज़ाहिद भी बनने वाले थे, बड़े मुत्तकी परहेजगार भी बनने वाले थे, बड़े इबादत गुजार भी बनने वाले थे, बड़े सखी भी बनने वाले थे, हुस्न अखलाक के मालिक भी बनने वाले थे। ये सारे औसाफ व कमालात प्यारे मुस्तफा की निगाहों के सामने थे। हुजूर जानते थे कि बड़े होकर ये हसनैन करीमैन बड़े आबिद व ज़ाहिद होंगे, मुत्तकी परहेजगार होगे, मुहद्दिस होगे, मुहक्किक होगे, लेकिन हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि आए लोगों मेरे ये शहजादे बड़े होकर आलिम बनेंगे, बड़े होकर आबिद व ज़ाहिद होगे, बड़े होकर मुत्तकी परहेजगार होगे, बड़े होकर सखी बनेंगे। इन तमाम फज़ाइल व कमालात से हटकर प्यारे मुस्तफा ने शहजादों का नसब बयान किया और फरमाया कि ये अफजल तरीन नाना के नवासे है, ये अफजल तरीन माँ बाप के बेटे हैं, ये अफजल तरीन चचा के भतीजे हैं, ये अफजल तरीन मामू के भांजे हैं। मोहतरम हज़रात, फिर मुझे बताओ, दुनिया में जैसे हुसैन के नाना है किसी और के नाना नहीं, दुनिया में जैसे हुसैन के वालिद है किसी और के वालिद नहीं, दुनिया में जैसे हुसैन की वालिदा है किसी और की वालिदा नहीं, नाना नबियों के सरदार है तो वालिद वलियों के सरदार है और माँ जन्नती औरतों की सरदार है। मोहतरम हज़रात, जरा गौर फरमाइए, क्या अज़मत है, क्या फजीलत है, क्या शान है हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की। तिर्मिज़ी शरीफ की एक और हदीस, खूबसूरत हदीस में आपके सामने पेश करता हूँ। सहाबी रसूल हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा रात का वक्त था, मुझे कोई हाजत और जरूरत पेश आई, मैं अपने उस हाजत के लिए बारगाह रिसालत में हाजिर हो गया। प्यारे आका मुझे शर्फ़े मुलाकात बख्शने के लिए बाहर तशरीफ लाए। मैंने देखा मंजर कुछ यूं था कि आपने चादर ओढ़ी हुई है और चादर के अंदर कोई चीज है जो आपके जिस्म अक़दस के साथ लिपटी हुई है, लेकिन चादर के अंदर क्या है ला अदरी, मैं नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं चादर में क्या है। खैर मैंने अपनी हाजत पेश की, प्यारे आका ने मेरी हाजत पूरी फरमाई। अब मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह चादर के अंदर क्या है? ये सुनते ही प्यारे आका ने चादर मुबारक को हटा दी। मैं क्या देखता हूँ, चादर के अंदर इमाम हसन है, इमाम हुसैन है।
आपने फरमाया हाज़ानी इब्नाई व इब्ना इब्नती, कि ये मेरे बेटे और मेरी बेटी के बेटे यानी मेरे नवासे हैं। फिर आपने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फहबिबहुमा, ऐ अल्लाह मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। व हबीब मैं युहिब्बुहुमा, और क़यामत तक जो खुश नसीब इनसे मोहब्बत करे ऐ अल्लाह उसे अपना महबूब बना ले। ये है अहले बैत की मोहब्बत की तासीर, या अहले बैत की मोहब्बत बंदे को अल्लाह का महबूब बना दे। हदीस पाक में हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है कि मेरा कुर्ब पाने का सबसे बेहतरीन जरिया फराइज की अदायगी है। यानी बंदा नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दे, हज करे, माँ बाप की खिदमत करे, हराम से बचे, सूद शराब से बचे, जितने फराइज है अदा करता रहे तो उस बंदे को अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, अल्लाह की नजदीकी हासिल होती है। मजीद अल्लाह फरमाता है कि नवाफिल के जरिए बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है ता अहबब्तहू, यहाँ तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता। गोया ये महबूब इलाही बनने का निसाब बताया जा रहा है। अल्लाह का महबूब कैसे बना जाता है उसका सिलेबस बताया जा रहा है कि बंदा फराइज को पूरे करे, साथ ही साथ नवाफिल की कसरत करे, 5 नमाजें पढ़ता है, तहज्जुद भी पढ़े, इश्राक और चाश भी अदा करे, और उसके साथ साथ अव्वाबीन भी पढ़े, ज़कात देता है, नफली सदका भी देता रहे, हज कर लिया है तौफीक मिली है नफली हज भी करता रहे, इसके साथ साथ रमजान के रोजे रखता है, नफल रोजे भी रखता रहे। यूं बंदा फराइज और वाजिबात की पाबंदी करता रहे यहाँ तक कि उसे एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला उसे अपना महबूब बना लेता है। लेकिन कुर्बान जाइए, अहले बैत की शान देखिए कि अल्लाह ने जो तासीर फराइज और नवाफिल पे रखी है, यही तासीर अहले बैत की मोहब्बत में रख दी कि जो बंदा अहले बैत से मोहब्बत करता है अल्लाह उसे अपना महबूब बना ले। फराइज के जरिए बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। जो बंदा फराइज की पाबंदी करता है, नवाफिल की कसरत करता है, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। लेकिन यही तासीर अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत में रख दी है कि जो बंदा अहले बैत से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसे अपना महबूब बना ले। मोहतरम हज़रात जरा गौर फरमाइए, क्या शान है हसनैन करीमैन की, क्या मकाम है अहले बैत अतहर का। आखिरी एक बात पेश करके गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पाक के बहुत सारे पहलू हैं। एक पहलू ये है कि आप कभी भी किसी भी हाल में शरीयत से एक इंच पीछे नहीं, हमेशा शरीयत के पैरोकार। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, मैदान करबला जब इमाम हुसैन को यकीन हो गया कि वादे का वक्त आ चुका, अब शहादत यकीनी है, तो उस वक्त आपने फरमाया कि कोई मुझे मोटा कपड़ा ला दो, मैं उसे अपने पहने हुए कपड़ों के नीचे बांधूंगा, ताकि जब मैं शहीद होकर जमीन पर गिरूं तो मेरा सत्र शर्मगाना खुल जाए। आपकी खिदमत में ऐसा कपड़ा पेश किया गया, आपने पहने हुए कपड़ों के नीचे उसे लपेट लिया। अल्लाह अकबर, हालात देख, करबला का मैदान है, 22,000 का लश्कर सामने खड़ा, 72 टन शहीद हो चुके हैं, 3 दिन के भूखे और प्यासे। यकीन है अब शहादत है, रूह निकलने के बाद बंदा मुकल्लफ नहीं रहता, मरने के बाद बंदा शरीयत का पाबंद नहीं होता। लेकिन जो बंदा अल्लाह की रजा का तलबगार हो, वो किसी भी हाल में अल्लाह की रजा को हासिल करने से पीछे नहीं रहता, वो हर हाल में अल्लाह को राजी करने के तरीके निकालता। अब देखिए इमाम आली मकाम किस हाल में है और फिक्र क्या है कि जब मैं गिरूंगा, शहीद हो जाऊंगा, तो कहीं मेरा सत्र ना खुल जाए। तो इन हालात में भी
शरीयत पर अमल करने की फिक्र है। और हमारा हाल क्या है, दावा हुसैनी होने का है, नमाज एक नहीं पढ़ते, दावा मोहब्बत हुसैन का है, रोजा एक नहीं रखते, दावा मोहब्बत अहले बैत का है, कभी सच नहीं बोलते, दावा हुसैनियत का है, नमाज हमारी मस्जिदें वीरान है, दावा अहले बैत की मोहब्बत का है, मदारिस वीरान है, दावा हुसैनियत का है, लेकिन हम गुनाहों का बाजार गरम कर रखे हैं। हज़रत ज़िबकार मेरे हुसैन तो वो है कि ऐन जंग की हालत में, मैदान करबला में, तलवारों के साए में भी आपने नमाज को कज़ा नहीं होने दिया। ऐन तलवारों के साए में, मस्जिद तलवारों के साए में आपने तकती हुई रेत पर सजदा किया। मेरे हुसैन तो वो है मैदान करबला में भी शरीयत के एक एक हुक्म का लिहाज रखे हुए है। मेरे हुसैन तो वो है कि आपने सर कटवा दिया, शरीयत पर आंच नहीं आने दी। मेरे हुसैन तो वो है शहादत के बाद सर नेज़े पर है और कुरान की तिलावत कर रहा है। हजरत ज़िबकार याद रखिए, हम हर हाल में शरीयत के पाबंद है। नमाज शरीयत ने फर्ज की है, पढ़नी ही पढ़नी है। रोजा शरीयत ने फर्ज किया है, रखना ही रखना है। सूद शरीयत ने हराम किया है, बचना ही बचना है। शराब शरीयत ने हराम की है, बचना ही बचना है। गर्ज के हर वो काम जिसका शरीयत ने हमें हुक्म दिया है, हम उस काम को करने के पाबंद है। और हर वो काम जिससे शरीयत ने मना किया है, उससे हम बचने के पाबंद है। गर्ज के हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारी तबीयत, हमारी ख्वाहिशात, हमारा खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना, ये सब कुछ शरीयत के ताबे है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी ख्वाहिशात को मेरे लाए हुए दीन के ताबे ना कर दे। मोहतरम हज़रात, ये है हमारा मेयार। तो इमाम हुसैन, इमाम आली मकाम की शहादत का मकसद भी यही है कि शरीयत पर आंच ना आने पाए। लेकिन हम ऐसे हुसैनी हैं कि खुद को हुसैनी कहते हैं, लेकिन नमाज कभी नहीं पढ़ते। दावा मोहब्बत हुसैन का है, लेकिन इमाम हुसैन की ये जो इसाले सवाब की महफिल रखी जाती है, उसमें एक बंदा नजर नहीं आता। दावा मोहब्बत अहले बैत का है, लेकिन कभी सच नहीं बोलते। दावा मोहब्बत अहले बैत और हुसैनियत का है, लेकिन शरीयत के खिलाफ काम करते हैं। मोहतरम हजरात, हुसैन की मोहब्बत हमें सच सिखाती है, हुसैन की मोहब्बत हमें नमाजी बनाती है, हुसैन की मोहब्बत हमें सजदा करना सिखाती है। सही मानों में अगर हुसैन नहीं हो तो आज से नमाज का हद कर लो, इंशाअल्लाह कभी हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।